done with backing any manager. Like मेरा हो गया है, because I'll tell you why. We are at a stature of Real Madrid or Barcelona. At least we think so as fan base कि हम लोग को वो quality देखना चाहिए, right? मतलब हम लोग को वो stature पे होना चाहिए कम से कम. We say, that we are one of the biggest clubs in the world for sure. We still are. We We maybe still are. we are, right. No. I said we're still we are one of the biggest clubs in the world. All right. Yeah, Maybe yeah. like in the top three. And I think top two even, like in terms of fan base or whatnot, after Real Madrid maybe. Like, Sure. मैं ये बोलता हूँ कि if Real Madrid or Barcelona can sack managers left, right, and center, even if they have won a league last year, and if they do not get the results that they want, why can't we do the same? It's worked for Chelsea, it's worked for Real Madrid, sacking managers, and retain managers who do well. Like that's what I believe. I know it's kind of a like ये तब एकदम knee jerk reaction था मेरा, like we had just lost the game. But I was like really frustrated. I was like, यार, I can't back any manager because एक cycle सा बन गया है, right? 3 साल टीम बिल्ड करो, उसके बाद they don't perform, उसके बाद इनके बहाने आते. तो I was like, यार, I don't need any sort of bullshit anymore. So that was my point of view. But awesome to hear what you guys have to say. Varun Rajveer is here just by the way. आदित्य भी आप पहले चालू करो because you are ETH out, फिर मैं बात करता हूँ उस पे. Real Madrid and on I would probably need a minute or two to say something. We have never built a team since Sir Alex Ferguson left. The two clubs in Premier League that have actually built something apart from Pep is Varun's team Arsenal and Klopp's team Liverpool. The reason is not Klopp and Arteta got the chance to do it. The reason was it was a collective effort of the entire club. When I talk about the entire club, it's the backroom staff, it's the people that are working in the stadium and everything. United ने build ही नहीं किया है भाई 2012-13 के बाद जब से Ferguson गए हैं. It's just that we think we are supposed to be at the top, but we are not. And the reason why I want ETH out is first season he came in, चलो ठीक है गलती से वो जीत गया. We saw a glimpse of what he is actually wanting to do. बट अगर कोई रियली यूनाइटेड फैन है ना और जो हरजोत बोलता है यूनाइटेड की हिस्ट्री, यूनाइटेड कभी टोटल फुटबॉल खेलता ही नहीं था. यूनाइटेड का 100 साल का अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, आई कैन डिबेट दिस विद एनी फकिंग गाय इन द वर्ल्ड हु इज अवेलेबल अलाइव, और जो वापस जिंदा होके आएगा ना उससे भी. यूनाइटेड ने कभी टोटल फुटबॉल नहीं खेला है. नेदरलैंड से आने वाला कोई भी मैनेजर वुड ऑलवेज गो फॉर बैक पासेस एंड प्लेइंग फ्रॉम द बैक. यूनाइटेड ने कभी नहीं किया ये चीज. यूनाइटेड हमेशा पावरफुल विंगर्स, फुल बैक्स के साथ खेलता था और आउट एंड आउट स्ट्राइकर होता था हमारे पास. हमारी आइडेंटिटी होती थी हमारा स्ट्राइकर, जो कि वैन पर्सी के जाने के बाद मेरे को बता दो कोई है. After Van Persie left United, Zlatan and Cavani. Cavani, yes, I agree with Cavani. Again, Ramadan, Falcao. You guys had Falcao. That is the reason I'm saying. That is the reason we have names. We cannot say identity. वो आए गए because वो जिनके कारण आए वो ही नहीं रह पाए तो वो क्यों रहेंगे? Cavani was lost. He was lost in the mix. He was lost because of Ronaldo. Nobody knew what is going to happen. I think RVP was really hurt when Sir Alex Ferguson left right after he joined. Everybody was. So the thing is, like whoever he was, his last major signing, na, matlab, wo or Zaha, for example. We had fucking Zaha and David Moyes, man. That motherfucker just. And the reason I want ETH out is this season he cannot have any excuses. This season, he cannot say, I do not have left-sided centre back, left-sided left back, midfielders, this, that. He cannot give any reasons. The biggest bullshit thing that Erik ten Hag has done in this season is, यार अगर तू मार्टिनेज और डिलीट को खिलाना चाहता है साथ में तो मेरे मुंह से गालियां निकलती है. तू कैसे 70 मिनट के बाद उनको निकाल सकता है मैच के बाहर? Tell me one team. Tell me वरुण बैठा है, आर्सेनल के सेंटर बैक्स अगर फिट हैं दोनों, सलीबा और वो कभी सब होते हैं भाई 90 मिनट्स में प्रीमियर लीग में. Like Aditya, can I join in on this? Like, of course you can. Like we asked this question to Mohit and Neil that we have never seen. Like अगर तुम like he's the one who came on the channel and said कि हमारे पास world class center back backups है now. I said, what? Do you even have world class center backs playing in the first 11 that can claim backups? नहीं.
नहीं I हाँ ठीक है, बोलो एक बार बोलो। ये स्टेटमेंट राइट है कि तुम अपने भाई चूज नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स चूज कर सकते हो जो स्टेप है यार मतलब कम से कम बार याद दिलाता है ये आदमी। अपना बैक फोर तो कम से कम स्टेबल रखो, ओनाना के साथ Exactly. बैक फोर तो रखो, भले आगे तुम्हारे पास मिडफील्ड में प्रॉब्लम है, पीपल जेल कर रहे हैं, कैसा है टाइम मिल रहा है मेरे लिए ना, कोई मतलब आई विल डेफिनेटली बी अग्रीइंग टू लिसन टू समवन, बट मेरा एक पॉइंट एकदम क्लियर है, अगर बैक फोर फिट है सब नहीं हो सकता। तो वही इशू है ना, वही तो इशू है, फिट नहीं है। नहीं बकवास है भाई, कोई ऐसा नहीं है फिट नहीं है। मेरे को बता, हर मैच में डिलीट लाइनअप में है। सी ब्रो, यूनाइटेड एलेक्स फर्ग्यूसन के एरा में अगर कोई प्लेयर अपने लाइनअप में लेता था, इट यूज्ड टू मीन दैट पर्सन इज फिट एनफ टू प्ले फॉर द मैच। मैं वही बोलता हूं, हरजोत को इंटरजेक्ट करने दो, उसके बाद वंस आफ्टर ही पॉइंट्स आउट, आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ चैट्स, लेट्स एड्रेस देम। अभी मैं वही बोलता हूं, यू नो सर एलेक्स फर्गुसन जो मैं बोल रहा था, हमने कौन सा एरा देखा? सर एलेक्स फर्गुसन का पीक बैच में सब अग्री करते हो, बहुत कंपैशन मेरे में भी यूनाइटेड के लिए, और बहुत सारे मेरे प्लेयर्स के लिए बहुत कंपैशन है। थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप कि हमारे क्लब में हुआ क्या है आफ्टर सर एलेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर एलेक्स फर्गुसन ने एक बहुत ही एजेड टीम छोड़ी, जो उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में बोली कि मैं कभी एक एजेड टीम नहीं छोड़ना चाहता हूँ, और कोई भी एक अच्छा मैनेजर अपने सक्सेसर के लिए एजेड टीम नहीं छोड़ेगा। It was because of Sir Alex Ferguson that United team actually defeated City, and that was the season where United came back in 21 games. It isn't a joke. हम 21 बार पहले concede करके वापस आके हम जीते वो season. It is not a joke, but because it is Sir Alex Ferguson. Problem क्या है टोटल फुटबॉल का, मैं बताता हूँ। सडनली हम देखते हैं 2008-9 में मेसी एंड बार्सिलोना का राइज क्यों? बिकॉज एक टकला ड्रग एडिक्ट मैनेजर फटाक से उनको जो है बहुत ज्यादा ही टिकी टाका फुटबॉल खिलाना चालू करता है। लोगों को लगता है ओह माय गॉड, हमने तो आज तक देखा ही नहीं, ये क्या देख लिया हमने। और हमने अगर देख लिया तो बंदा वो बायर्न चला गया, वो ऑलरेडी फार्मर लीग थी, उसको और खतरनाक वाली फार्मर लीग बना दिया। वो 80 गोल मार देते, इसके आने का 120 गोल मारने लग गए। तो ये जो टोटल फुटबॉल चालू हुआ ना, आई डोंट ब्लेम दिस डच गाइज, आई ब्लेम पेप एंड द टाइम हाउ इट हैज चेंज्ड। बिकॉज नाउ सबको लगता है जब तक आप टोटल फुटबॉल ना खिलाओ फैंस को मजा नहीं आएगा। बिकॉज व्हाट डिड फैंस से व्हेन एलवीजी आया, अरे भैया यार हमें टोटल फुटबॉल तो पूरा दिखा दो, हम तो टोटल फुटबॉल देखेंगे। बिकॉज 2014 में एलवीजी ने क्या किया डच के साथ, वो सबने देखा। वैन पर्सी भी भाई उसका सबसे फेमस स्ट्राइकर है हमारे साथ, हमारे टीम में तो एलवीजी तो सब फोड़ ही देगा। प्रॉब्लम यही है, पेशेंस जब दिखाना था, वी पुल्ड द ट्रिगर एट द रॉन्ग टाइम, एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस at United we have sacked managers always at the wrong time. Had Ole been given more time, उसको तुमने I guess अक्टूबर में उसको सैक किया था, अक्टूबर या नवंबर में। अगर ओले को तुम रखते मार्च तक, वो घसीटते 4th या 5th पोजीशन पे ले आता। बिकॉज ही न्यू कि अब मैं रोनाल्डो को भी इंटीग्रेट कैसे कराऊं, ही न्यू। प्रॉब्लम क्या है, वी आर टू मच इनटू दैट स्ट्रिंजेंट टैक्टिक्स कि हमें पेप जैसा सिस्टम खिलाना है। भाई उसके लिए पेप जैसे प्लेयर्स चाहिए। अब बात आती है कि हमें बोला गया कि हमारे मैनेजर साहब जो है वो इन दोनों को 70 मिनट के बाद क्यों निकालते हैं। 4 दिन पहले न्यूज आ गई कि लिसांड्रो मार्टिनेज को भी इशू आ गया है कि उसकी फिजिकल कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये अर्जेंटीना टीम के डॉक्टर्स ने बोला है, ठीक है। डील इट हैज कम इनटू प्रीमियर लीग फॉर जस्ट 2 months। खुद विडिच और एवरा बोले कि हमें 6 महीना साल भर लगा है to get accustomed to Premier League. Then how do you expect these guys who are coming from different league to get accustomed to, you know, Premier League? हम दूसरे मैनेजर के वरुण एक सेकंड, क्या है ना, मैं यूनाइटेड फैंस का हिपोक्रेसी बताना चाहता हूँ यहाँ पे। यू नो आई डोंट माइंड व्हेन यू नो दूसरे फैंस हमें आके सब बोलते हैं ना, आई डोंट माइंड दैट यार तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। भाई तुम लोग दूसरे प्लेयर के लिए, दूसरे मैनेजर के लिए इतनी सिंपैथी क्यों दिखाते हो। वहां रॉड्री इंजर हो गया सिटी के लिए तो चालू हो गया ओ माय गॉड सिटी को प्रॉब्लम हो गई बिकॉज रॉड्री इंजर हो गया। भाई 60 इंजरी थी पिछले सीजन में, एरिक टेनाक को गालियां पहले मैच से दे रहे थे, ये क्या कर रहा है, ये मैनेजर इसने खिलाना चाहिए सारे प्लेयर। भाई लुक एट द क्वालिटी ऑफ द टीम, वुड दैट क्वालिटी जो लास्ट सीजन थी कैन बी पार्ट ऑफ एनी टॉप 4 टीम? नो। इस साल पहली बार प्रॉपर बोर्ड, प्रॉपर मेडिकल डिपार्टमेंट, प्रॉपर समर ट्रांसफर, हमने किसी पे भी ओवर स्पेंड नहीं किया। इवन फैंस यू नो जो ऑपोजिशन टीम के फैंस है वो लोग अग्री करेंगे कि यूनाइटेड ने एक्चुअली सही धंधा किया।
200 मिलियन में इतने प्लेयर लाए जो हम आज तक कभी नहीं ला सकते थे. आई गेस लास्ट टाइम वी डिड दिस वाज अंडर लुई वैन गाल. इतना स्पेंड और उतने में इतने प्लेयर आ गए 7-8. बट प्रॉब्लम ये था कि लुई वैन गाल के इसमें बाकी इश्यूज बहुत थे, इसके इसमें इशू वो नहीं है. अब बात आती है जो आदित्य भैया ने बोला और मोहित ने भी बोला कि एरिक टेन हैग जो टोटल फुटबॉल ट्राई किया, उसने फर्स्ट सीजन में भी ट्राई किया, वो ओले ने भी ट्राई किया था. ओले हिमसेल्फ सेड दीस गाइस कैन नॉट प्ले पोजीशन बेस्ड फुटबॉल. तो एरिक टेन हैग के पास एक ही चीज बचती है, और जो फैंस सारा टाइम पिछले साल बोलते रहे हमें बोर होता है वो खेलते हुए जो हमारी टीम सर एलेक्स फर्गुसन के अंडर खेलती थी. भाई सर एलेक्स फर्गुसन के अंडर भी हम काउंटर अटैक ही खेलते थे, ज्यादा काउंटर अटैक ही खेलते थे. प्रॉब्लम ये था कि हमारे मिडफील्डर और जो फॉरवर्ड्स है इतना बढ़िया प्रेस करते थे ना उनके अंडर कि डिफेंस तक बॉल ही नहीं आता था, तो वहीं के वहीं चला जाता था. और आया भी